Lions Club International, District 321C1, organized a virtual meeting on 19th September 2020 to discuss services by Lions during COVID-19 under the leadership of District Governor Lion Dr. Ashwini Kamboj, and the meeting was organized by District in charge Schooling and Seminar, past District Governor Lion Shiv Kumar, and was coordinated by Lion Rashtravardhan Arora. Keynote speaker of the meeting was past International Director Dr. Raju Manwani from Mumbai, and honorable guest was past International Director Salim J. Mohsen from Lebanon. This meeting was participated by eminent leaders of District 321C1 as well as neighboring districts of multiple District 321. So here follows the meeting. Sir, good afternoon. Salim sir, good afternoon. Good afternoon. How are you? Fine. Welcome Salim Hussain. Thank you. Thank you. Oh, nice of looking you after long time. Oh, yes. I hope you are all doing well. Yes, they're fine. Good, good. We are very proud of excellence in Lebanon. Rani, good morning, good afternoon. Very good afternoon. This is Dr. Raju Manwani wishing everyone. Welcome Raju Manwani ji. My Good brother morning, sir. Salim. My See you after long Salim. time. Hi. More of like Shah Salim. Shiv Hi, Bhaiya. my friend. Hi, brother. Namaskar, Bhai Sahab. Namaskar. Salim Musanji, Namaskar, I am namaskar. Lion Vishal Malhotra from Lions Club Hapur Star. Welcome you for this program. Raju ji, Sir, welcome sir. सर आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा मेरे निजान में रहता है. आपकी ये खासियत है, आप हमेशा हंसते रहते हैं. thank you, sir. Thank you. Thank you. Don't let this Salim look like Narendra Modi today. Yes, what? looks like that. Is this a good compliment, I hope? Of course, Salim, you are going to be our international president, my dear. So you have to look like a Mr. Narendra Modi only. Thank you. Thank you. Thank you. Right. Thank you, my brother. Right. How's Alia? She's fine? Fine. She's fine. Thank you. Great. Nice to see you. All Thanks is to fine. Bhaiya and all governors team of the C1. Yeah, today at least we are meeting face to face. And as Yes. usual, you're looking very glowing face always, Salim, Musan. Good. Shiv Bhaiya, everything is okay? Okay, sir. Okay, everything is okay. Governor sir? क्या हाल है सर? गवर्नर सर आने वाले हैं अभी. Namaskar, Bhai sir. Namaskar. नमस्कार सर. Great. So मैं सर बरोबर 3:59 पे जुड़ गया हूँ शिव भैया. जी. Please, 4 o'clock का टाइम था सर. Right, sir. Right. Thank you. While we are waiting, I can share with you a few things that Lions here we are doing. What we are doing here is definitely not standard thing. You know, it's something that can happen once in a lifetime. You all heard about the Beirut drastic and dramatic explosion on 4th of August. That was rated the 4th strongest explosion in history. Oh God. So Hiroshima, Nagasaki, and one more somewhere, and this is number 4. Fortunately, we have received good donations, especially from Lions of Europe, and started by Norway and so on, many districts. And today we had a meeting with the Army General, who is authorized to centralize and supervise all the efforts doing by NGOs. And we are receiving full praise and by this Beirut Disaster Relief Committee. We have already made some restorations specifically for windows, doors, so that people can have their own shelter at their own homes again. Over 300, but we are going to make between 1,000 and 1,500 more. So just I wanted to share this with you now, since we are waiting for the meeting.
And yeah, a lot of damages here. 40,000 to 50,000 homes damaged in 1 minute. Salim bhai, how far was this explosion site from your house? From your From home? my house, it's about 5-6 kilometers. But you know, birds flight is just like 1.5 kilometer. Actually, I have a glass broken at my home, even that far. Oh, very bad. Yeah, and my daughter was injured actually. She had here, fortunately, little bit far from the eye and some parts of the body. So she was taken to the emergency. No hospital was able to receive the 6,000 to 7,000 patients injured at 1 hour, you know, just by leaving home and going to the hospital. So she has to go to 2 hospitals to get some very fast stitching and so on. So it was, you know, a hospital emergency ward is ready to receive maybe 10, 15, 20 people at one time. I cannot receive 500 to 1,000 at one time. So those 6-7 hospitals around the area were in big panic, but fortunately, they were able to save lives. But still 200 people lost their life anyway. I hope she is fine. She's fine. She's fine. Yes, thank you. So today's meeting is about our District 321C1, very active in organizing so many services for the people suffering from the pandemic of COVID-19. And we hope that our governor will first say about first detail about the such services, but we also need some guidance from Salim Hossain and Raju Manmani ji. So we further go ahead because we still don't know how long it will go. So first of all, I request my past district governor Shiv Kumar to start the meeting. Have the welcome address. आज की इस सभा में आप सभी का स्वागत करता हूं। गवर्नर साहब का दिया हुआ आदेश, गवर्नर साहब का दिया हुआ प्रमोशन, गवर्नर साहब को धन्यवाद देता हूं और सभी को इस उम्मीद के साथ आज इकट्ठा किया है कि कोविड-19 के दौरान जो भी हम लोगों ने सेवा कार्य किए वो हम एक दूसरे से साझा करें, अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हम करें और आगे क्या हम कर सकते हैं, कोविड के दौरान क्या अच्छी सेवाएं हम दे सकते हैं, इन सब का ब्यौरा भी हम साझा करें तो अच्छा रहेगा हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। मैं मीटिंग आरबी को हैंड ओवर करता हूँ और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। Thank you, Shiv Kumar. Now I request my governor, Land Dr. Ashwini Kamboj. मैं चाहता हूं कि अश्विनी काम्बोज जी आप बताएं कि अपने गवर्नर में जो सर्विसेज हुई हैं, अपने सॉरी डिस्ट्रिक्ट में जो सर्विसेज हैं, वो जो सर्विसेज हैं उनका आप बताएं और ताकि हम आगे मीटिंग को बढ़ा सकें। पहले हम अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रस्तुति करें। थैंक यू राष्ट्रवर्धन जी। आज की इस मीटिंग में मैं सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से आज के हमारे कीनोट स्पीकर पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर राजू मनमानी जी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ और पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर सलीम मोहसान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आज की इस मीटिंग में सभी का स्वागत करता हूं और चौधरी साहब को थैंक्स करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया और कोविड-19 के समय में इस तरह की मीटिंग से एक लोगों के अंदर एक उत्साह आएगा, नई एनर्जी आएगी जिससे हम और ज्यादा सेवा कार्य कर पाएंगे। राष्ट्रवर्धन जी ने जैसे अभी बोला है तो मैं बताना चाहूंगा कि कोविड-19 चूंकि मेरा जो कार्यकाल हुआ उससे पहले ही शुरू हो गया था। मार्च से कोविड-19 बहुतायत में हिंदुस्तान में एक पेंडेमिक के रूप में प्रकट हुआ और मैंने कार्यकाल 1 जुलाई से संभाला है। तो मैंने पेंडेमिक में ही अपना कार्यकाल संभाला है और पेंडेमिक के दौरान हमने बहुत सारे काम किए और आज अगर हम मल्टीपल की बात करें 3 to 1 की
तो सारे गवर्नर्स और हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन, उन सब का भी ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट 321C1 ने सराहनीय काम किया और पूरे मल्टीपल सबसे अच्छा काम किया है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि हमने सबसे पहले अपने मल्टीपल में इस डिस्ट्रिक्ट की स्कूलिंग शुरू की। हमने सारी स्कूलिंग्स की, ट्रेजरार्स की स्कूलिंग की, जोन रीजन चेयरपर्सन्स की स्कूलिंग की, सारी जूम मीटिंग के माध्यम से की। डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट हमने मीटिंग की और जो अप्रूवल्स हमने लेनी थी वो सारी अप्रूवल्स भी हमारी हुई है उस मीटिंग में। और आज हम ये कह सकते हैं कि 4 हमने न्यू क्लब बना दिए हैं अभी तक, और 140 की मेंबरशिप ग्रोथ के साथ हम आपके सामने हैं। और एक क्लब हमारा रिसेंटली अप्रूव होने जा रहा है बहुत जल्दी। तो 5 क्लब हमारे जो है करीब करीब बन गए हैं और लगभग 180 की मेंबरशिप ग्रोथ पर हम जो है इस समय पहुंचे हुए हैं। पहले ही दिन जो हमारा डॉक्टर्स डे हुआ था 1 जुलाई को, तो उस डॉक्टर्स डे पर हमने जो है डॉक्टर्स को सम्मानित किया और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग लगभग हमने 160 में से 140 क्लबों ने उस प्रोग्राम में भागीदारी की और 1065 डॉक्टर्स को, जो कि पूरे मल्टीपल में एक रिकॉर्ड है, 1065 डॉक्टर्स को हमने सम्मानित किया। कुछ को उनके घर जा करके और कुछ को क्लब्स के अंदर बुला करके अलग अलग माध्यम से, जो भी कोविड-19 की इस महामारी में कोरोना वॉरियर के रूप में लगे हुए थे, उन सभी डॉक्टर्स को सम्मानित किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारी स्टोरी बड़ी सक्सेसफुल हुई और इस सक्सेस स्टोरी के लिए भी हमारी जो ग्रांट होती है $500 वो भी लगभग सैंक्शन के उसमें है, क्योंकि हमें वहां से मेल आ गई है कि आप अपने अकाउंट की डिटेल भेजिए। तो जो एक कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ऐसी चीज होती है जिसको सफल कहा जाता है, तो उसके लिए जो इंटरनेशनल से जो एक धनराशि आती है वो हमारी सैंक्शन हुई है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पहले ही दिन की रही है। उसके बाद हमने एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ट्री प्लांटेशन का कार्य किया और लगभग 5700 पौधे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाए गए। उसके बाद 15 अगस्त को हमने एक एक्टिविटीज की कि जिन लोगों ने अपने अपने क्लब में अलग अलग तरह से जो है काम किए हैं, सराहनीय काम किए, विशिष्ट कार्य किए, उनको सम्मानित किया। 15 अगस्त का वो भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग क्लबों के माध्यम से हमारे यहाँ किए जा रहे हैं। कोविड के दौरान गरीबों को खाना देना, गरीबों की सहायता करना, और कोविड-19 पेंडेमिक के अंतर्गत हमारी एक इमरजेंसी ग्रांट हमको सैंक्शन हुई है $10,000 की, जिसमें हमने जो उनकी गाइडलाइंस थी इंटरनेशनल की गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ के जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ ऑफिस, उनको हमने लगभग जो है वो 10,000 मास्क और 6,000 सैनिटाइजर और लगभग 700 किट्स जो है हमने उनको दी हैं, ताकि जो जिले में जो हमारे और पूरे राज्य के अंतर्गत जो कोविड डेडिकेटेड सेंटर बने हुए हैं उसमें जो है वो जा सके। आज के समय में गवर्नमेंट ने प्रत्येक राज्य में कंट्रोल रूम बनाया हुआ है कि कोविड से संबंधित कोई भी नीड को पूरा करने के लिए हम वहां पर डोनेट कर सकते हैं और उसके माध्यम से वो पूरे राज्य के अंदर वो पहुंच जाएंगे। हमारे बहुत सारे क्लब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गंगो वाले अच्छा काम कर रहे हैं आई के विजन के क्षेत्र में, और ब्लड डोनेशन भी बहुत सारे क्लबों के माध्यम से किया जा रहा है। शामली क्राउन, ऋषिकेश रॉयल, अग्रवाल मंडी, देहरादून इलाइट, और अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो देहरादून लायंस क्लब देहरादून एक अच्छा हॉस्पिटल चला रहा है। मेरठ भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हापुड़ स्टार, यहाँ पर मल्होत्रा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने भी 9 एक्टिविटी की है 2 माह के अंदर। गाजियाबाद सीनियर की आज ये एक्टिविटी है जो कि एक प्रेरणादायक एक्टिविटी है। तो ये सारे काम जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ी तेजी से किए जा रहे हैं और इन काम के माध्यम से हम बहुत अधिक जो है वो काम कर सकते हैं। हमने कुछ ऑनलाइन अवेयरनेस कार्यक्रम किए हैं यहाँ पर, जिसमें हमारे पर्सनल और म्यूचुअल फंड्स को जो है हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग कोविड-19, और हेल्थ अवेयरनेस पर हमने कार्यक्रम किए। पर्यावरण के ऊपर हमने कार्य किए जिसमें हमारे वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत भी सम्मिलित हुए, और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सेबी के माध्यम से हमने कार्यक्रम किए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो क्लब्स हैं और उनके ऑफिस बेयरर हैं वो उसका लाभ उठा सके और उसके माध्यम से हम लाभान्वित कर सके। तो इस तरह के कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगातार किए जा रहे हैं। राष्ट्रवर्धन जी, आपने कहा कि डिटेलिंग ये डिटेलिंग कर रहा हूँ आप सभी की जानकारी के लिए, और चौधरी साहब का आज की इस मीटिंग के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह का अपनी स्कूलिंग और सेमिनार्स
का उनको चार्ज दिया गया है। स्कूलिंग तो लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन सेमिनार्स जो है वो कभी भी हम कर सकते हैं, और जो समाज के लिए लाभदायक हो, समाज के लिए फायदेमंद हो, ऐसे सेमिनार्स हमें करते रहने चाहिए। उसके लिए मैं गाजियाबाद सीनियर्स के जो है हमारे पास्ट गवर्नर चौधरी साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस समय जो है स्प्रेडिंग मोड में है, कोविड-19 जो है वो स्प्रेडिंग मोड में है, बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो इस समय ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, ज्यादा सावधानी की जरूरत है। आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखिए। इम्यूनिटी के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा कि बहुत बार मैं बता चुका हूँ, और सब लोग जो है टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो सब चीजें जो है जानते हैं कि आयुर्वेद कितना कारगर हुआ है। हम एक आयुर्वेद शिक्षण संस्थान चलाते हैं, और आयुर्वेद में जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो गिलो है, अमृता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। उन सब का इस्तेमाल करिए। एक बार फिर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आपके सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय लाइनवाद। विशाल मल्होत्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विशाल मल्होत्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे? विशाल सर, myself Loin Vishal Malhotra, newly chartered club Loins Club Hapur Star. My club is chartered on 15th July this year on COVID-19, and we are only 3 months old club, and we done 9 projects towards this day. Our first project is for environment. We have opened 79 trees where different state of our city Hapur. Hello. Next program is our Tej. This is the Mushanji. This is the most popular festival in India for ladies. So this is the Tej program. We organize him. Then with Krishan Janmashtami, our God Krishan Ji. This is the birthday of Krishan Ji. There we organize this program in our club. Then our Independent Day, 15 August, we also organize with good and full clubs, full club members are involved in this program. And then we will go a service project, Gau Seva, yani ki cow, service of cow. We are hoping next a good program with the leadership of Loin Ashwani Kamboj ji. Thank you very much. Thank you, Vishal ji. So now I request Loin Anup Kayal ji from Shamli. So थैंक यू राष्ट्रवर्धन जी। सभी गवर्नर साहब का मैं धन्यवाद करता हूं, और आपका भी कि मुझे बोलने का मौका दिया आपने। सभी का स्वागत। मैं सबसे पहले अपने गवर्नर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं, अश्विनी काम्बोज जी का, कि मेरे साथ काम्बोज साहब ने इतने अच्छे 8 क्लब लगाए हैं। सभी एक से बढ़कर एक एक्टिविटीज कर रहे हैं, और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए कि मेरे साथ जो आपने क्लब लगाए हैं वे लगभग अब तक 250 एक्टिविटीज कर चुके हैं। तो सभी क्लब अपने अपने क्षेत्र में कोविड का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और सभी सावधानियां बरतते हुए और समाज सेवा करने का जो संकल्प लेके कार्य कर रहे हैं, उनमें कहना चाहिए इतनी बड़ी क्षमता है कि उनका पैशन इस कोविड-19 से भी आगे बढ़ गया है। तो मुझे गर्व है अपने सभी 8 क्लब पर कि वे एक्टिविटी लगातार एक के बाद एक करते आ रहे हैं, और अश्विनी काम्बोज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे साथ ये 8 क्लब लगाए। मैं चाहता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लायंस क्लब भी इसी तरह से कोविड-19 का ध्यान रखते हुए अपने प्रोजेक्ट को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद हर्षवर्धन जी। थैंक यू। थैंक यू अनूप कायल जी। आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया और बताया। नाउ आई रिक्वेस्ट सुमन बिष्ट जी। थैंक यू सर। इस बार मैं लायंस क्लब गाजियाबाद सीनियर्स की प्रेसिडेंट हूँ, तो आप सभी का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है।
और अब मेरी तरफ से अभिनंदन है। हमने ऑलमोस्ट जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की एक्टिविटीज मिली थी सभी की हैं, लेकिन 1 day 1 एक्टिविटी जो जुलाई 1 की थी उसमें डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट और एक यूथ के सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रीब्यूट करने थे जुलाई मंथ के, वो हमें नहीं मिले। तो हमने सारी एक्टिविटी की है, उसकी रिपोर्ट भी हमने डाल दी है। So now, Raju Vanwani ji, I request you to come on the screen, and because what kind of works we are doing, what kind of services we doing, so you can further guide us to make Lions more useful for the community. So Raju Vanwani ji, आप अपने शब्दों में कुछ कहिए। धन्यवाद राष्ट्रवर्धन जी, thank you very much. First of all, I would like to know that how much time exactly I have with me. शिव भैया, टाइम की आपके लिए कोई बात नहीं है। You are our past international director and you have a lot of experience. So you can go ahead. You as well as Salim Musan, no time limit. The problem is between me and Salim Musan. Whenever Salim Musan will talk in French, I will try to convert in Hindi. So you want me to speak in Hindi or English or French? Sorry? सभी की इच्छा हिंदी की है सर। Okay, okay. So आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रमोद साहब, Lieutenant, both the governors, first vice governor and second vice governor, my brother Shiv Bhaiya, who has given this opportunity to me to come and address you all respected part district governor, my brother and my future leader of Lions Club International, Lions Salim Musan, and each and every one, region chairman, zone chairman, presidents, and all the Lions and Leos of beautiful district 321C1. Thank you. COVID-19 सबके लिए एक ऐसा श्राप बन के आया, लेकिन वी लायंस हम लोग ऐसे हैं कि उस श्राप को वरदान में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट ऑल्सो वी नो दैट। अनफॉर्चुनेटली इन पिछले 5 महीने के अंदर हम लोग कम से कम, मैंने तो अपने 50 से 60 दोस्त थे, करीबी दोस्त थे जो हमने गंवाए हैं, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो आपके अभी मैंने देखा रीजन चेयरमैन, जोन चेयरमैन और प्रेसिडेंट सारी रिपोर्ट्स दे रहे थे, जो काम कर रहे हैं गलियों में जाकर के बिना किसी डर के। हम लोगों ने क्या किया है बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वो मैं आपको थोड़ा सा मेरा नॉलेज देता हूं ताकि शायद उससे आप लोगों को ये पता चले कि ये चीजें सही है कि गलत है और हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कोविड-19 में सबसे पहले हमने अपना खुद का ध्यान रखा कि हम मास्क पहन करके जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इवन घर पर भी दिन में 8-10 बार हाथ धोना, क्लीनेस, हाइजीनिक करना, घर का अच्छा खाना खाना, घर वालों के साथ बैठ करके एकदम पॉजिटिव नेचर से खुश रहना बहुत जरूरी है। वो चाहे हम घर में बैठ के लूडो खेलें या कार्ड्स खेलें या आपस में हाइड एंड सीक खेलें, लेकिन वो एटमॉस्फेयर बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोगों ने बाहर जाना शुरू किया है, क्लब लेवल पे, लायंस क्लब लेवल पे, लियो क्लब लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, अपने समाज की तरफ से कम उन गरीबों को जो या तो हमें किसी चौराहे पे या किसी सिग्नल पे मिल जाया करते थे, जो हम लोगों के ऊपर डिपेंड रहते थे, वो जो बड़ी बुरी कंडीशन में है, ऐसी जगहों पे सोते हैं, ऐसी जगहों पे खाते हैं जहां दिन भर की हम लोग वो नंबर्स जो बीएमसी वाले हमें देते हैं देख के हम लोग बहुत दुखी हुए थे। तो कई जगह अनाज के पैकेट, खाने के पैकेट, पानियों की बोतलें, कुछ अच्छी खाने पीने की चीजें, कुछ कपड़े, लायंस और लियोस लोगों ने जो अपने रात को बिना बताए भी जाकर के उनके साथ जाकर के उनकी जगहों पे देखे हैं। सबसे बड़ी बात है, जो 5-6 महीने तक हमारे घर के अंदर हमारे घर की बाइयां, हमारे ड्राइवर्स, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, सफाई करने वाले जो नहीं आ पाए, जो हमारे ऊपर ही डिपेंड करते थे, उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबतें हो गई। तो हम लोगों ने उनके लिए उन तक उनकी पगारें 5 महीने की हाथ जोड़ करके उन तक पहुंचाई। कुछ लोगों ने पूरी नहीं पहुंचाई तो 50% पहुंचाई, और कुछ लोगों ने उन लोगों को कम से कम वो चीजें पहुंचाई जो उन लोगों के बस की बात नहीं थी, लाइक विटामिन सी, और विटामिन सी के वो टेबलेट जो थोड़े शायद कॉस्टली होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अच्छे मास्क, अच्छे सैनिटाइजर्स, वो हम लोगों ने उन तक पहुंचाने की कोशिश की। यहां तक कि अब
वो चीजें जो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग बैठ के लैपटॉप के ऊपर आपसे सोशल मीडिया के थ्रू आज ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी कनेक्ट होकर के सारी मीटिंगें कर सकते हैं। अच्छी बात सीख गए कि हम टाइम, एनर्जी, मनी, ट्रैफिक, पेट्रोल, गाड़ी का, ड्राइवर का सब बचा लिया। यहाँ बैठ के मैं लेबनान भी पहुंच गया, मैं आपका 321C1 में भी पहुंच गया। कम से कम ये सारी चीजें जो हमारे सीनियर सिटीजन्स नहीं कर सकते थे वो लोग भी सीख गए। इसके अलावा जो हमारे घर की बाइयां, ड्राइवर्स, कुछ ऐसे स्टाफ जो 15, 20, 25 साल से काम करते हैं, उन सबका हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा दिया, एक ग्रुप इंश्योरेंस जिनका रफली करीब 1000 से 1500 रुपया साल का आता है, ताकि फ्यूचर में अगर कभी ऊपर वाले ने नहीं चाहा, उनको कोई तकलीफ हुई, तो कम से कम वो इंश्योरेंस का पैसा उनके घर वालों को अच्छी तादाद में मिल जाए, ताकि उनको कभी आगे जाके उनके घर वालों को तकलीफ ना हो। कोविड हमें बहुत सी अच्छी बातें सिखा के गया और कुछ गलत एक्सपीरियंस भी दे के गया, लेकिन सब कुछ अपने ऊपर है कि हम कितने पॉजिटिव हैं, हम कितना अच्छा सोचते हैं, हम कितना खुश रहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत महत्व रखती हैं साहब। एक 25 साल का बच्चा जिसको अगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है और डर के मारे बेचारे उसने अपनी जिंदगी गंवा दी, 23 इयर्स का यंग मैन है जो अस्पताल से वापस अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर इतना डिटरमिन था कि वो हॉस्पिटल से वापस अपने घर पे अपने बच्चों के पास आ गए। हमें अपनी मदद पहले खुद करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, हर चीज के अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारे घर वाले हमें फॉलो करेंगे, हमारे स्टाफ वाले हमें फॉलो करेंगे। बाकी रही गरीबों की मदद करना, उन हेल्पलेस लोगों की मदद करना, उन बातों का ध्यान रखना, उन चीजों का जिनका आपने सोचा नहीं था कि आपकी लाइफ के अंदर आपको कभी मोबाइल के ऊपर, जूम के ऊपर, स्ट्रीम यार्ड के ऊपर या अपना गूगल के ऊपर जाकर के ये सारी मीटिंगें करनी पड़ेगी। अब तो ये हो रहा है कि इस साल बल्कि हमारे क्लब के अंदर तो काफी अच्छी खासी एफडीज जमा हो गई, क्योंकि कहीं पैसा खर्चा हो ही नहीं रहा है, कहीं हमारी मीटिंग हो ही नहीं रही है। हम घर के सामने बैठे अपना गिलास, अपना चाय का कप हाथ में लेके चेयर्स करते हैं और हम लोग एंजॉय करते हैं, अपनी मीटिंगें करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 100% अटेंडेंस मिल रही है, क्योंकि सारे सब लोग घर पर बैठे हैं और मोबाइल हर किसी के पास है। पहले मीटिंग का एक्सक्यूज दे देते थे कि ट्रैफिक था, मेरे घर पे प्रॉब्लम थी, मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम थी। अब यहाँ तो वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं बता सकते। अटेंडेंस अच्छी होने लग गई, हेल्थी मीटिंग होने लग गई, डिस्कशन अच्छे होने लग गए, क्योंकि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा भी मीटिंग करें, घर पे बैठे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और मीटिंग भी कर रहे हैं। नहीं दिखाना है तो म्यूट पे कर दिया, नहीं फेस दिखाना है तो हम अपना कैमरा भी साइलेंट पे कर दिया, लेकिन मुझे शिव भैया की आवाज आ रही है, मुझे कंबोज साहब की आवाज आ रही है, तो मैं उनको सुन रहा हूँ, और जब मुझे बात करना है तो मैं ऑन करके मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं अपने मोबाइल पे भी लगा हुआ हूँ, वो भी काम कर रहा हूँ, आपको भी सुन रहा हूँ और आपकी बातों का जवाब देने के लिए भी तैयार बैठा हूँ। तो कई चीजें वो हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि हाउ वी टेक द थिंग्स इन आवर लाइफ, इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, confidently or unconfidently, we are going in the depression or no, and how much our immunity power is there, what we are eating, how we are just going out and all these things. But you have to think yourself, you have to give a little bit time to yourself. इन 24 घंटों को भी आपको बराबर डिवाइड करना पड़ेगा साहब। आज भले हम ऑफिस में 2-4 घंटे के लिए जा पाते हैं या कोशिश करते हैं, जरूरी होता है तो ही जाते हैं, क्योंकि मुंबई की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, लेकिन फिर भी पूरी सेफ्टी के साथ जाके सारे काम करके आ जाते हैं। बट स्पेशली वो दुआएं शायद हम लोगों के पीछे काम कर रही है, जो कि कोविड के पहले भी हम लायंस वाले हर जगह करते आए हैं, और अब कोविड में भी हम वो सारे काम कर रहे हैं। वो दुआएं हमें जरूर साथ दे रही हैं कि आज मैं, मेरी वाइफ, मेरी दोनों बच्चियां, हम चारों के चारों कोरोना पॉजिटिव हो गए, चारों घर में बैठे रहे, 14 दिन तक अलग अलग कमरों में बैठे रहे। एक परमानेंट जो लेडी हमारे घर में बेचारी, वो हमारे कमरे के बाहर खाना रखती रही, और 14 दिन के अंदर हम ठीक करके बाहर आ गए। लेकिन वो 14-15 दिन भी हम लोग पूरे के पूरे अपने फेसबुक लाइव शो करते रहे, कमरे में बैठे हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, तो ये कैमरा के सामने बैठ के करते भी हैं। हाँ, ये बात है कि वीकनेस की वजह से हम ज्यादा बैठ नहीं पाते थे, इसीलिए मतलब वो हम दिखाते नहीं थे कि हम वीक हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल हम अपने फेस पे रखते थे, और बरोबर बात कर करके आज वो सारे के सारे, जो आप काफी लोगों को मेरे क्रिएटिव मिलते होंगे रोज के रोज, जो हम डेली प्रोग्राम करते हैं, वो प्रोग्राम कंटिन्यू करके रखे हुए हैं। यहां से अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना बहुत जरूरी है। आप जितना फ्री वक्त में रहेंगे, वो खाली दिमाग शैतानी दिमाग होता है साहब। अगर आप यहां से पूरे अपने आप को बिजी रखते हैं, फिजिकली आप अच्छी फिजिक घर पे बैठे बैठे, पलंग पर बैठे बैठे हल्के फुल्के योगासन वगैरह, हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह,
घर के अंदर रस्सी के साथ आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिलीव मी, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज सब बड़े बुजुर्ग जितने भी जीनियस हैं जिनके मैं वीडियोस देख रहा हूं, वो सब उन्होंने एक ही बात कही है कि 2020 आप खुद के लिए है, आपके लिए है, आपकी लाइफ बचाइए, अपनी जिंदगी बचाइए। कमाने के लिए आपके पास और कई साल पड़े हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस 2, 4, 6 महीने के प्रॉब्लम्स की वजह से आप इतने परेशान हो जाएं कि आप मजबूर हो जाएं बाहर जाने के लिए, और कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आ जाए, आपको दुख नहीं होगा लेकिन आपके घर वालों को बहुत ज्यादा दुख होगा, क्योंकि आपके वजह से आपकी वाइफ, आपके बच्चों को, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को अगर वो कोई तकलीफ हो गई तो वो सबसे बड़ा दुख आपके लिए होगा। आप डिसाइड करिए कि हमें ये 4-6 महीने दुख देखना है या हमारे घर वालों का दुख देखना है। दैट वी हैव टू सी इट आवरसेल्फ। कोविड के लिए मैं आपसे यही बातें कर सकता हूँ। अगर मेरे लिए कोई सवाल हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 2-4-5 मिनट के लिए अगर मुझे कंबोज साहब और शिव भैया अगर अलाउ करेंगे, अगर किसी के कोई सवाल हो तो मैं उनके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बट अपना और अपने आस पड़ोस वालों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भाई साहब, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है जी। नहीं शिव भैया, आपके पास है। लेकिन दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार कहीं ना कहीं किसी दोस्त से फोन पे बात जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है साहब। विश्वास करिए कि इन 5 महीनों के अंदर मेरे अगर 100-200 रिश्तेदार होंगे तो मैंने सबसे फोन पे बात कर ली होगी, जो मैंने पिछले 10 साल में नहीं की थी। और वो खुशी कब मिलती है जब उनकी तरफ से सारी बातें सुनने को मिली, तो पता चला कि हमारा खानदान और कितना लंबा चौड़ा होता जा रहा है। हमारे दोस्त लोगों के घर में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं, कुछ गलत न्यूज़ें भी मिली, लेकिन कम से कम पता चलता गया और लोगों को लगा कि चलो हम एक दूसरे से टच में हैं। तो आप लोगों में से अगर, क्योंकि मैं खुद भी आज सलीम हुसैन साहब को भी सुनना चाहता हूँ और आप लोगों को भी सुनना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे से अगर कोई सवाल हो तो मुझे बताएं, वरना मैं आप लोगों से इजाजत दूँ। अगर कोई सवाल हो मेरे लिए तो प्लीज शिव भैया, यू कैन आस्क एनीबॉडी। भाई साहब, आपने जो शेयर किया बड़ा अच्छा लगा। आपकी ये जिंदा दिली हमें पता नहीं कहाँ कहाँ तक खींच के ले जाती है, आपके साथ कहाँ कहाँ हम पहुंच जाते हैं। यही आपकी जिंदा दिली है, यही आपका भाईचारा है। तो भैया आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये इस टाइम में ये हम लोगों ने जो सोशल मीडिया को यूज किया है, इस सोशल मीडिया के थ्रू हमने अपने लायंस के फंक्शंस, लियोस के फंक्शन, हमारे समाज के फंक्शन रोज शाम को कर करके उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ तक कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को, यहाँ तक कि नितिन गडकरी जी को भी, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे शहनवाज हुसैन साहब हो, चाहे हमारे सुरेश प्रभु साहब हो, चाहे वो सोनू निगम हो, चाहे वो सोनाक्षी हो, हम लोगों ने सारे बॉलीवुड, टॉलीवुड और पॉलिटिशियंस और डॉक्टर्स, इनको सबको बुला के रोज 1-1.5 घंटा हम लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक लाइव पे इतने शो करते रहते हैं कि अब एक आदत सी बन गई है कि लॉकडाउन अगर हट भी गया तो भी ये एक शाम को हम एक प्रोग्राम तो कंटिन्यू करते रहेंगे, ताकि हम, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम हर एक के घर के बेडरूम में और हॉल में पहुंच गए हैं। वहां से बैठ करके वो हमारी बातें सुन सकते हैं, हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मेरा सवाल, आपके जवाब आते रहते हैं। वो इतना अच्छा लगता है कि ये एक अच्छा मीडिया, एक हमें अच्छा रास्ता मिल गया कि कम से कम इस मीडिया के थ्रू हम उन लोगों तक पहुंच गए जो कभी सोचा नहीं था कि ये सारे पॉलिटिशियन या बॉलीवुड और टॉलीवुड के स्टार हमारे घरों पे, हमारी स्क्रीन पे आके हमसे डायरेक्टली हमारे सवालों का जवाब देंगे। ये सब चीजें सर, मतलब कुछ पॉजिटिव भी होता है तो कुछ नेगेटिव भी होता है, कुछ अच्छे के लिए होता है और ऊपर वाला कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद हमें आज मालूम नहीं पड़ेगा, जिसके लिए स्वच्छ भारत कमेटी लायंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से बनाई गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से। नरेंद्र मोदी साहब बोल बोल के थक गए, लेकिन अब लोग खुद अपनी सफाई खुद बहुत अच्छी तरह रखने लगे हैं। खुद अपने हाथ धो रहे हैं, घर में कचरा नहीं कर रहे हैं, बाहर कचरा नहीं फेंक रहे हैं, बाहर थूक नहीं रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। चलो अच्छा है, कम से कम उस लेवल पे तो आ गए। सर वो है ना कहावत के भय भी न होए ना प्रीत, जब तक भय नहीं होगा जब तक काम होगा नहीं। करेक्ट सर। लेकिन मैं समझता हूं कि आपने बुरे वक्त को भी अच्छे में कन्वर्ट कर लिया। इट वाज एन आर्ट सर, दिस इज कॉल्ड लायंस। थैंक यू। राइट कमल साहब? बिल्कुल, यू आर राइट। और एक नई है हमारी, ये जो आईटी टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई इन्वेंशन हुई है, क्योंकि पहले हम नहीं सोच सकते थे और न ही हम इसका यूटिलाइजेशन करते थे, लेकिन अब हर कोई इजीली इसको समझ गया। अगर घर में कोई नहीं जानता तो उनके बच्चे जानते हैं, और इस टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा हुआ है इस कोविड के ड्यूरेशन में, और हम एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह जुड़े हैं। और जैसा राजू मनवानी जी ने कहा है, मैं भी रोज करीब 1 से 2 मीटिंग रोज अटेंड करता हूं,
और सारे पॉलिटिशियंस और सारे बड़े लोग जो हैं, जो हमारी मीटिंग्स में नहीं आ पाते थे, वो इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़े हैं। उनके विचार सुनने का मौका मिला है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको भी पब्लिक तक जो है पहुंचाना आसान हुआ है। और इस जूम के माध्यम से हमने लायंस क्लब में, मैं तो समझता हूँ कि पिछले 3 महीनों में 100 से ज्यादा मीटिंग्स मैंने अटेंड की है, अवेयरनेस प्रोग्राम किए, कुछ लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे किए हैं, कुछ हमने अपने आयुष मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे किए हैं, कुछ हमने अपने कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे किए हैं। तो बहुत सारी मीटिंग्स हमने की हैं और एक मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है। फायदा ये हुआ कि जैसा मनवानी साहब ने कहा है कि मोबाइल हर किसी के पास है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकता कि साहब मैं जाम में फंस गया था या मेरे पास टाइम नहीं था या मैं वहां अटक गया था। तो अगर कोई नहीं भी जुड़ता है तो उसको हम फोन कॉल करके जोड़ देते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। कुछ हर चीज के एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं और हमने इसको नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला है। और आपने सही कहा कि इट इज कॉल्ड लायंस। लायंस वास्तव में जो है, जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ था तो ऐसी एक निराशा का माहौल था उस समय कि कुछ नहीं हो पाएगा इस साल में, लेकिन हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। रिजल्ट आपके साल में आएगा सर, सबसे अच्छा रिजल्ट आपके साल में आएगा। हाँ, मेरी कॉन्फ्रेंस में आए थे, मुझे याद है। और आज देखो कि हम जो है, आप बॉम्बे से बैठे हैं, मैं देहरादून में बैठा हूँ, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और सलीम मौसानी साहब जो विदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सारी चीजें जो है वो आसान भी हुई हैं, क्योंकि पहले हम इस प्लेटफॉर्म तक अगर कोविड न होता तो शायद हम जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर पाते। तो सर अगर एक बात सोचिएगा कि ये खत्म भी हो जाए लॉकडाउन तो भी इस मीडिया को यूज करते रहिएगा, वरना बॉम्बे से राजू मनवानी को बुलाना और लेबनान से सलीम हुसैन साहब को बुलाना, उनको टिकटें भेजना, फिर वहां पे उनको होटल का कमरा देना, फिर रात को उनको बैठ करके एंटरटेन करना, सर ये सारा पैसा बचा सकते हैं। और ये हर डिस्ट्रिक्ट ये पैसा आप सर्विस में लगा सकते हैं। कई क्लब वाले बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पूरे इंस्टॉलेशन जो आज तक हम लोगों ने वर्ल्ड में कहीं जाके नहीं कर सकते थे, ये सोशल मीडिया के थ्रू वो इंस्टॉलेशन कर दिया हम लोगों ने। बाकी ये खत्म हो जाए उसके बावजूद भी प्लीज हमें सोशल मीडिया पे बुलाइए, बड़ी स्क्रीन पे बैठ करके हम सबसे आमने सामने बात कर सकेंगे। टाइम, पैसा, एनर्जी, एयर टिकट, रूम के चार्जेस सब बचेंगे और आप अपने सर्विस बजट में लगाएंगे सर। ये तो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एक नई इन्वेंशन हो गई है। जब कोई इन्वेंशन होती है तो उसका जो बेनिफिट सोसाइटी को मिलता है, तो नई इन्वेंशन हुई है और इसका बेनिफिट हम सब लोग लेते रहेंगे। थैंक यू मनवानी साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यू हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल एंड मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी अच्छी तरीके से आकर के हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथियों को मोटिवेट किया। थैंक यू वेरी मच। बड़े भाई राजू मनवानी जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। सर नमस्कार अनु भैया, नमस्कार। आपने बिल्कुल सही बात कही। इस कोविड-19 ने हमारी टेक्नोलॉजी को लगभग 5 साल आगे कर दिया। जो चीजें हम 5 साल बाद आने वाली थी, वे टेक्नोलॉजी आज हम यूज कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों से सीखा, चाहे हमने अपने ट्राई करके किया, लेकिन इस आपदा ने हमें बड़े अवसर दिए हैं, हमें बहुत कुछ सिखाया है। आपके एक एक बात सच है और थैंक यू वेरी मच। आपका सुनना बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, Manwani. I have noticed one thing, that in Lions, when we do these services, the pattern is that we must do the eye camps, we must do the blood donation, plantation, like there are number of projects that every club keeps doing. Magar this opportunity of, I call it an opportunity under disguise. कि COVID-19 की वजह से we have been forced to sit down and think what new can be done. As you rightly said, कि हमने अपने ड्राइवर को, हमने अपनी हेल्प को, अपने जी सुनाई दे रहा सर, बोलिए ना सर। क्या हमने उन सबको यूज किया और उन्हें हेल्प करने की कोशिश, मगर सुनाई दे रहा है अरुण भैया, बोलिए। What really happened कि अभी तक हम अपने ड्राइवर को लेके 300 किलोमीटर चले जाते थे and the poor man was driving and bringing us back in the night. Today, for the first time, we are saying नहीं तुम safe रहो, घर पे रहो, we will pay your salary, we will take care of your children. And I think कि जब हम services की बात कर रहे हैं, तो it is not only important that we go and serve people away from us. Rather, we should start the services in the house. And the other purpose of this meeting was कि दिल्ली गाजियाबाद में बैठ के हम क्या सर्विसेज कर रहे हैं
आप बॉम्बे में क्या कर रहे हैं, and what can be an exchange to improve the level of services. अरुण भैया, मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा कमल सर, Please. लेकिन ये वक्त ऐसा है अगर जो अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि हमें पता चल गया ये 5 महीने तक जब हम लोगों ने घर के बर्तन साफ किए या कमरे साफ किए या झाड़ू पोछा किया, तो हमें पता चल गया कि एक्चुअली हमारे घर में बाइयों की और ड्राइवरों की क्या अहमियत है। अगर हो सके सर, उनको खाली 1 महीने का बोनस उनके पैकेट में डाल के अगर आप गले मिला के उनके हाथ में दोगे ना सर, बिलीव मी, आपको दिल से इतनी दुआएं मिलेगी कि पूछिए मत सर। हम लोगों ने एक छोटा छोटा अमाउंट डाल के खाली लिफाफों में हमारे उन सारे स्टाफ वालों को और हमारे जो ये काम करने वाले जिन्होंने वापस रिज्वाइन किया है लॉकडाउन खत्म होने के बाद, मतलब दे आर सो हैप्पी, दे वर इन टीयर्स, दे नेवर एक्सपेक्टेड साहब कि हमको तो आधे कई लोगों को पगारें नहीं मिली, कई लोगों को आधी पगारें मिली, लेकिन यहाँ उनको एक छोटा पैकेट बोनस का मिला, तो सर वो बहुत दुआएं मिलेगी और कोशिश करके सर वो दुआएं लेने की कोशिश करिएगा सर। वेरी गुड, Thank you, Manwani ji. Now I request to Salim Mosanji. You can speak and just share your experiences and your guidance, so we can further prove better for our district 321C1. Good afternoon and namaste, everyone. I'm really very happy, very pleased, and very honored to be part of this group of friends. We have met before in many occasions. Of course, I was honored one time to be at your district, 321C1, along with my brother also, PID Raju Manwani, who is being known as the most handsome PID in the world. And thank you, past Governor Shiv Kumar, for inviting me. Thank you, District Governor, for accepting that I share with you some moment here. District Governor Ashwani Kamboj and the Vice Governors. I recognize also, I salute the past governors. I recognize past Governor Arun Mittal here with us, and probably others that I cannot see, and all the Lions, of course. But before I proceed with some of my observations at these times, I would like to present my sincere condolences to all of you, to Lions of India, Lions of ISAMI, and Lions of the world, for the great loss of the leader, past President Rohit Mehta. May his soul rest in peace. He has been, he has left a legacy of service. He was a gentleman, and we will all miss his guidance. So again, my condolences to all of you. My friends, Lions of India in general are known to be leaders in service. I don't think you really need guidance or advice because I was observing you on social media, and I see that what has been needed at the beginning of the COVID and throughout this whole long period of time, you have been providing meals, sanitizers, masks and other products for hospitals, medical clinics. I saw also for police officers and all of that. In fact, I believe that in life, the need is the mother of innovation. So according to what our community needs, I'm sure that you all have the ability to know what is your local community needs, and I know that you are doing very well. Of course, some of you are doing services still in person, maybe taking some risk, taking precautions, of course, but still there are risk, and everybody appreciates what the Lions do. This is why we are Lions. But I realize that also we live in time of technology at this time. Although it is important, I hope that this kind of life will not last for long. But as long as it is, I think that we can use online technology for some ideas or some fundraising. So the need for social distancing or physical distancing continues to impact fundraising efforts. I mean, how can we do fundraising if we don't do what we usually do? However, at the same time, community still needs us. Apparently,
they need us even more than before now. Now, if you think of it, due to the economy factor, which affected all the world, even the middle class is affected. I mean, in the past, we used to make services for the poor, but now even some middle class people are in need. So, but still, some of the events, so we are here, whether at home or apart, in person, or we are together, we have to always make a difference. What an online fundraising possibility could be. I will go very fast on this because what I want to speak about today is two things. One is about possibility for any hall, any room, meeting room. You are not providing meals. The attendance is also unlimited. Why? Because you can think, depending on the project, it could be local, it could be regional, it could be nationwide, and it could be international. Today, you can invite anybody in the world and can share with you. Very important is the purpose of the event. And I'm sure if the event is successful, recruiting new members among the guests or among those who subscribed, that will be also good for recruiting new members for your own clubs. The other thing that I would like to talk about today is why, while our focus is to serve others, that's true. But also, unless our clubs are strong enough, we cannot serve others. So we need sometimes to serve ourselves. What do I mean by this? I mean that we are at home, we have plenty of time, so why our meetings cannot be focusing on engaging the members? You are a member of the club, you know, you have 30 members. When you go to the meeting, sometimes you have 10, 15, 20, but I'm sure never club, not never, but it's very rare that any club and 100% in person have a meeting. So you have the advantage of being at home, time saving, no traffic, no stress. Some old people, they are not attending our meetings because of this hassle. Some people are simply lazy. Some mothers, they need to be at home with the kids, etc., etc., etc. And the good benefit of this kind of meeting is that you can wear a short or pajama and nobody can see. And therefore, what I trust is that, first of all, before inviting extra members or guests, why don't you go to the membership roster, go correct the data, ask questions, see what is missing, fill it out. Then the second step, you go for a meeting where, and this is very important, where you re-engage. So first you engage your members. Next step, re-engage former members, those members that left your clubs. Many of them, they left for simple reasons. Reluctant. Some of them, they were not interested for any reason. What you can do is recall your archives, some activities you made in the past with these former members, entice them with the kind of club reunion meeting where you can highlight past accomplishments, supported by photos of fun times with them. I'm sure you can gain few members of those former members that used to be at your clubs. We always think about this, but sometimes we don't do the extra effort. At this time, because of the simplicity of the online meeting, I can assure you, you can invite former members and get them again. Number three, of course, you can invite special guests, not only the former members. You have Lions speakers, district officers, past directors, and some professionals, some topics. You know, in Lions, we believe in two pillars, right? It's fellowship and service. That's very true. But
recently, the last 10, 20, 30 years, I think we should make some other input to it. Networking, for example, knowledge. We can gain at this time, we have a lot of free time, this kind of thing to strengthen the membership in our clubs. And because every club member would like to think, as you know, what's in it for me? Why I'm joining this club? For service, all right, I like to do service. Whenever we can do service, we'll do service. Fellowship, fine. We are together, we are friends. But also I need to learn. I need to learn leadership skills, other skills in life, and also that kind of networking. And because of that, and because of simplicity of connection, you can make networking with other clubs, not only in your district, and not only in your country, but also in the world. The other idea about fun meeting, you can do like happy virtual hour virtual meet, for example, just to make some kind of incentive and motivation. Let's say, hey friends, fellow members of my club, next time, because we are at home, let's all of us wear hats, see what type of hats we have at home. Let's wear all of us. Next time, let's meet, all of us have lion vest, or let's have a blue shirt, anything of that. Anything you think that can bring some kind of motivation, strengthen the fellowship, you can do. So these are the few things that I wanted to share with you. At the beginning of the meeting, a few of you were present already. In Lebanon, we have something very special. We are doing a great service, but unfortunately, it's not caused by COVID-19. It's caused by the damage of the Beirut explosion that you all heard of as disaster on 4th of August, but we are doing our best. So we have a lot of services to do here, but really they have nothing to do with COVID-19. Again, you can do the online and social media awareness about COVID-19. I know many people say, but already people know, they hear it every day. I know that. However, we know that there is a quotation that says that repetition is mother of skills. So whenever you repeat anything, it's important for the people, for the community to know about. At the end, I would like to remind you that what President Choi told us is that great challenges test us at this period of time. Oh, that's it. Anyway, I already said, because of time given to me, this I wanted to share with you these kind of ideas. And as you know, I have focused too much on the meetings among us, among the Lions, to strengthen the club, because a strong club makes a strong service, as you know. Therefore, as I said, President Choi told us that great challenges test us. So my friends, keep Lions Fellowship and service alive. Have fun, be creative, and think outside the box. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you very much. We have Assistant Governor S.K. Madok here in the meeting. So we don't want to miss his words. So I think for 2 minutes he can brief and say some words for us. Lan S.K. Madok. Yeah, thank you very much for giving me the chance. You know, land service is very important. Without that, we can't be successful in any way. But during this period, we can do more services in between, because our mind setup is like that now. First, we have to fight with this pandemic, and program has been assigned to us. That's very important. I have just listened Salim Muswan. Yes, I do agree with him. Whatever he says is to be taken care for this. Let us all unite together in this and fight out whatever best possible towards it. And since we cannot meet in person, but at least by this way, what we are doing is Zoom meetings or a meet meeting, we are becoming much more closer. This is the need of the hour. Anything pertaining to service is very important. Without service, nothing is there, nothing is in Lionism, otherwise we will be zero. So let us put our all effort
for all this thing so that we should be successful and meet Mr. President. Good luck to all. God bless you all. Thank you very much. Thank you very much, Lion S.K. Madhu. And now Thank I you. request Lion Arun Mittal, our past district governor. He will just sum up about the meeting and have some few words in brief, so we can just revise everything in very short. Lion Arun Mittal. Thank you, Rashwardhan. I think this is exactly what is happening, that we were limited to activities within the club. Today, we have participation from Mumbai, we have participation from Lebanon, and we are able to listen to everybody and share our views. I think when we were talking in the club level, we were always saying, get good members, get more members. Today, I think we can say, get involved with other clubs, because we can have a joint meeting, as Salim Musan correctly said, that we can have meetings where we can invite other clubs also, and everybody can work together. So I'm really grateful to both our PIDs who have spared their time to share their views with us. It was, I think I'm meeting Salim after almost 4 years, when Shiv Kumar was the governor and you had visited us. And that was the time we had a lot of chat. Now, the world has become very small. The pandemic has shrunk the world. Yes, we had to invite, Salim had to travel all the way, as he rightly said. Then only we could talk and meet. But today we can do it. So I request now Lion Vineet Sharma to present vote of thanks. Lion Vineet Sharma. कि कोविड-19 ने हमें प्रॉब्लम्स भी दी है, डिफिकल्टीज भी दी हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनसे लड़ने का हमें मौका भी दिया है, ताकत भी दी है। पहले सलीम मोहसन जी साल में 180 दिन ट्रैवल करते थे, अभी हम लेकिन उनको ऑनलाइन सुन पा रहे हैं। हमारे जितने भी क्लब्स हैं, सभी लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं कोविड-19 के लिए, जो कर सकते हैं कर रहे हैं, और सभी वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके घर में रहकर इस तरह से भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें एक नया सबक भी मिला है। आज सब जो डिग्निटरीज हमारे साथ हैं, सलीम मोहसन जी हैं, काम्बोज जी हैं, डॉक्टर राजू मनवानी हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे अपने विचार हम साथ शेयर किए, हमें मोटिवेट किया, और इसके साथ साथ ही हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम उनके विचारों से प्रभावित होते रहेंगे, प्रभावित होकर काम करते रहेंगे, और हमारी जो एक्टिविटीज है इसी तरह चलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। आज की सभा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन जैसा असर हमारे कोविड-19 का हमारे सेहत पे, हमारे समाज में पड़ रहा है, आज की मीटिंग पे भी एक वायरस का असर है, कोविड-19, COVID, कोविड-19, जिसके कारण अटेंडेंस थोड़ी कम रही है। फिर भी मेरी पहली मीटिंग थी, अच्छी रही। मैं आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय नंद। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ फॉर दिस एफर्ट। भैया। I can only tell you कि चाहे numbers कम थे, but I think people who were very important, who could tell us more, were there. So I must compliment you. I must thank PID Salim Mosan and PID Raju Manwani for your time, and that only speaks of your affection for us. Thank you very much. थैंक यू। गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, गवर्नर साहब ने एक अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बंद करो। अरोड़ा जी बंद करो। So thank you everyone. Thank you sir, thank you. We hope very soon we will be having one more meeting. Thank you everyone. अश्विनी शिव कुमार जी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Thank you very much. Thank you.